دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی شادی ایک سانپ سے کیوں کر دی گئی، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ بنی، اور پھر شادی کی پہلی ہی رات اس سانپ نے اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سب سے انوکھا ہے، اس لیے گزارش کریں گے کہ اس سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک جگہ پر ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی بہت نیک اور رحم دل انسان تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس خوب دولت، گھر، جائیداد، بنگلے اور بہت سے نوکر چاکر موجود تھے۔ اسی وجہ سے یہ اپنے علاقے میں حکومت بھی کرتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک اولاد کی کمی تھی۔ اس نے اولاد کی وجہ سے 3 شادیاں کی، مگر اس کی تینوں بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دشمن میری بیویوں کے ساتھ اور میری جائیداد کے ساتھ آخر کیا سلوک کریں گے، اور میرے علاقے کی حکومت کون سنبھالے گا۔ یہ سب کچھ جب وہ سوچتا تو بہت پریشان ہو جاتا۔ اس علاقے کا بچہ جانتا تھا کہ رئیس آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ تڑپتا ہے، فقیروں اور درویشوں کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے دربار پر جا کر چادر چڑھاتا ہے، مسجد میں جھاڑو پوچھا کرتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کرتا تھا۔ اسی علاقے میں ایک نجومی تھا جس کا نام برکت تھا۔ وہ اپنے فن میں بہت ہی چلاک اور مشہور تھا، لیکن وہ قسمت کا مارا تھا۔ ہر وقت اس کے پاس پیسے کی کمی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس کو ایک ترکیب سوچی۔ وہ نئے کپڑے پہن کر رئیس آدمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھیے سرکار، میں نے اپنے علم سے پتہ لگایا ہے کہ اگر آپ 18 سال کی لڑکی سے شادی کریں گے تو اس کے بدن سے ضرور آپ کو اولاد ہوگی۔ رئیس آدمی نے نجومی سے پوچھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ نجومی نے بتایا کہ ساتھ والے علاقے میں ایک بیوہ بڑھیا رہتی ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے۔ وہ کہنے لگا کہ چلو، جہاں میں نے 3 شادیاں کی ہیں تو میں ایک اور کر لیتا ہوں۔ میرے پاس کون سا پیسے کی کمی ہے، میرے پاس تو بس اولاد کی کمی ہے۔ اس نجومی کی بات اگر سچ ہو جائے تو میری جائیداد کا کوئی وارث مل جائے گا۔ پھر اس رئیس آدمی نے نجومی کو ایک موتیوں کی مالا دی اور کہنے لگا کہ اگر میری چوتھی بیوی سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو تمہیں اس کا انعام دیا جائے گا، اور اگر تمہاری یہ بات جھوٹی نکلی تو تمہاری کھال کھنچوا کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ نجومی کہنے لگا کہ سرکار، میری جان تو آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، لیکن اب آپ مجھ پر یقین رکھیں، میری بتائی ہوئی کوئی بھی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ آپ ایک بار اس بڑھیا کی بیٹی سے شادی کر کے میری اس بات کو آزما لیجئے۔ یہ نجومی برکت بہت ہی برے حالاتوں کا مارا ہوا تھا۔ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، کیونکہ اس نجومی کی وہ بڑھیا بہن تھی، وہ بہت ہی غریب تھی۔ اس بڑھی عورت کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نجومی نے سوچا کہ میں اپنی بھانجی کی شادی اس رئیس آدمی سے کروا دوں گا اور وہ اس جائیداد کی مالک بن جائے گی، اور پھر اس سے مجھے بھی رقم ملتی رہے گی۔ پھر اس نجومی نے تھوڑے دن بعد رئیس آدمی کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دی۔ پھر اس رئیس آدمی نے اپنی بیوی کو وہ عزت بخشی جو ان کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھی۔ رئیس آدمی کی چوتھی بیوی کا نام شہناز تھا۔ اس کو اپنے نجومی ماما کی مکاری کا سب علم تھا، اس لیے شہناز نے بھی اپنے رئیس شوہر کو معلوم نہ ہونے دیا کہ نجومی کی بھانجی ہے۔ شہناز ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ اس نے کچے گھر میں اپنی پرورش پائی تھی، اس لیے اس کو اپنے شوہر کے محل نما گھروں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز اپنے رئیس شوہر کا ایک ایک محل دیکھا کرتی۔ جب اس نے سارے محل دیکھ لیے تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا ایک اور محل ہے جو آبادی سے بہت دور ہے، تم نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا۔ وہ میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا، وہ بہت پرانا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک دم سے وہ مچلنے لگی۔ رئیس آدمی کہنے لگا کہ اس محل میں صبح تمہیں لے کر چلوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ رئیس آدمی اپنی بیوی شہناز کو پرانے محل میں لے کر گیا۔ وہ محل دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا۔ محل میں بہت بڑے اور پرانے درخت بھی موجود تھے۔ اس محل کے ایک کمرے میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ شہناز نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس کمرے میں کون تلاوت کر رہا ہے، تو وہ آدمی اپنی بیوی کو اس کمرے میں لے کر گیا جس میں ایک اللہ والے بزرگ جو کہ بہت ہی نیک تھے وہ تلاوت کر رہے تھے۔ اس پورے محل میں بس وہی ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ دن رات اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ وہ اللہ والے بزرگ دن کو ٹہلتے ہوئے ان پرانے درختوں کے پاس آتے اور ان کے نیچے بیٹھ کر دن کو اللہ کی عبادت کرتے۔ پرانے درخت دیکھنے میں بہت ہی عجیب و غریب نظر آتے تھے۔ شہناز نے اپنے شوہر سے کہا، یہ درخت دیکھنے میں بہت ہی عجیب و غریب نظر آتے ہیں، کیا ان بزرگوں کو ان درختوں سے خوف نہیں آتا؟ وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔
जो अल्लाह की इबादत करते हैं और उनके दिल में अल्लाह का नूर मौजूद होता है, और जिनके दिल में अल्लाह का नूर मौजूद हो उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। इन अल्लाह वाले बुजुर्गों का कहना है कि इन दरख्तों के नीचे सांपों की एक बस्ती है। कई सांप ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग से बातें करते हैं और इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। शहनाज ये बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी और फिर इसके बाद वो अपने घर वापस चली गई। शहनाज की मदद से इसका नजूमी मामू और इसकी बुढ़िया माँ सदियों से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, अब खूब मजे ले रहे थे। उनकी हर रात मजे की मस्ती में और दिन ईद की तरह गुजरने लगे। इसी तरह करते करते शहनाज की शादी को 2 साल हो गए, मगर उससे भी इस आदमी को औलाद ना हुई तो वो रईस शख्स बहुत मायूस हुआ। फिर एक दिन इस रईस आदमी ने गुस्से में आकर उस नजूमी को अपने महल में बुलाया और कहने लगा कि तुम एक झूठे नजूमी हो, लिहाजा अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। नजूमी कहने लगा कि आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने कोई गलत बयान नहीं किया। आपके खानदान का वारिस आपका चश्मो चिराग इसी साल जरूर होगा। इस आदमी ने एक बार फिर खुश होकर इस नजूमी को मोतियों का हार दिया। वो नजूमी हार लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास गया और जाकर कहने लगा, तुम थोड़े दिनों में ये मशहूर कर देना कि मेरी बेटी शहनाज रईस आदमी की छोटी बीवी माँ बनने वाली है। वो बुढ़िया कहने लगी, ये बात मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस झूठी बात को निभाना बहुत मुश्किल है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नजूमी कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा ये नजूमी भाई किस दिन काम आएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं एक ऐसी तरकीब बनाऊंगा कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। फिर नजूमी की बुढ़िया बहन ने चंद दिनों में ये बात मशहूर कर दी कि शहनाज माँ बनने वाली है। इस आदमी की सबसे छोटी बीवी इस खानदान को वारिस देने वाली है। इस रईस आदमी ने खुश होकर गरीब लोगों में बहुत सी चीजें, बहुत सारे इनाम तकसीम करवाए। नजूमी रईस आदमी से कहने लगा कि सरकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे एक नजूमी से पता चला है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की तरह बेटा पैदा होगा और इसकी पैदाइश के 14 साल आप पर बहुत सख्त गुजरेंगे। वो रईस आदमी कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया। नजूमी आदमी कहने लगा, आपके खानदान के चश्मो चिराग को अगर आपकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देखा तो आपका शहजादा बेटा एक बुत बन जाएगा या मर जाएगा। रईस आदमी का मुंह खुला और चेहरा एकदम से मुरझा गया। रईस आदमी की आवाज एकदम से दब गई। वो ये सुनकर बहुत परेशान हो गया कि उसका एक वारिस पैदा हो रहा है और मैं इसको देख नहीं सकूंगा। नजूमी कहने लगा कि जब आपका बेटा पैदा होगा तो आप इसको 14 साल तक नहीं देख सकते। जब वो 14 साल का हो जाएगा तो आप इसकी शादी कर दें, लेकिन आपने इसकी बारात में शरीक नहीं होना। जब वो शादी करके अपनी दुल्हन लेकर घर में वापस आए तो आप अपनी बेटी और बहू की सूरत एक साथ देख लीजिएगा। इस नजूमी की ये सारी बातें सुनकर वो रईस आदमी बुत बनकर खड़ा सोच रहा था कि पहले तो अल्लाह ने कई साल तक उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा और जब औलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। उसके दिन रात बेचैनी और बेकरारी में गुजरने लगे। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल बना दिया जाए ताकि उसके वारिस की परवरिश अच्छे तरीके से हो सके। थोड़े ही दिनों में खूबसूरत महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा पैदा होने के करीब आया तो रईस आदमी की बीवी शहनाज को इस महल में पहुंचा दिया गया। शहनाज की देखभाल के लिए और इसकी हिफाजत के लिए उसकी बड़ी माँ को मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी गैर औरत की नजर बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो नजूमी की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर एक नौकर के जरिए रईस आदमी को बेटा पैदा होने की इतला दी। इस रईस आदमी की खुशी की इंतहा न रही। इसने सारे मुल्क में इतला दी कि हर आदमी बहुत खुश था। रईस आदमी ने अपने इलाके में बहुत सी मिठाइयाँ तकसीम की, खेल तमाशे किए गए और इन अल्लाह वाले को बुलाकर अपने बेटे की उम्र दराज के लिए बहुत सी दुआएं की गईं। कई रोज तक मस्कीनों को खाना खिलाया गया। बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी की गईं। कैदियों को रिहा कर दिया गया। अहदेदारों के अहदे बढ़ा दिए गए। मजीद तरक्की देखकर वो नजूमी अपनी चालबाजी और चालाकी पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने कितनी आसानी से इस मुल्क के रईस आदमी को बेवकूफ़ बना दिया। फिर अपनी बहन और भांजी से कहने लगा कि तुम लोग 14 साल तक खूब ऐश की जिंदगी गुजारो। इसके बाद ये रईस आदमी जिंदा रहा तो फिर कोई नई चाल सोचूंगा। नजूमी वैसे तो अपनी भांजी शहनाज से कुछ न कुछ लेता रहता था। अगर इसको कुछ खास चीज की जरूरत होती तो वो शहनाज से कहकर रईस आदमी से मंगवा लेता। इस तरह वो अपनी मुसीबतों से अब तक आजाद हो चुका था। शहनाज और इसकी बूढ़ी माँ दोनों रईस आदमी से कभी कभार इनके महल में मिलने के लिए चले जाया करते थे और उसे उसके झूठे बेटे अली की बहुत सारी बातें और किस्से सुनाया करते। वो रईस आदमी इनकी बातें सुनकर अपने बेटे के बारे में सोचता और फिर ठंडी ठंडी सांसें लेने लगता, लेकिन वो मजबूर था
अपने बेटे अली को देख नहीं सकता था। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। जब बरकत नजूमी के बताए हुए 14 साल पूरे होने को आए तो वो रईस आदमी को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। रईस आदमी ने इस नजूमी से अपने बेटे की शादी के बारे में बात की कि मैं किस तरह की लड़की से अपनी बेटी की शादी करूं। इस नजूमी आदमी ने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी किसी भी लड़की से कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुराने महल में जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। वो रईस आदमी अपने 2 नौकरों को लेकर अपने पुराने महल में इस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास चला गया। इस वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहे थे। वो पूछने लगा, आप तो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या आप मेरे बेटे अली के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हैं ताकि मैं इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकूं। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस रईस आदमी की बातें सुनकर पहले तो काफी देर खामोश रहे। इसके बाद अल्लाह वाले कहने लगे, आपको तो अपने बेटे की कोई खबर ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप अपने बेटे की शादी किसी लड़की से करें। वो रईस आदमी कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मेरा बेटा अली अब बहुत जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद इस आदमी को कहने लगे कि आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करें जो कि हाफिज़ कुरान हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाज़ी हो और बहुत परहेजगार हो। इस वक्त एक काला सांप रेंगता हुआ रईस आदमी के पास आया। वो रईस आदमी और इन अल्लाह वाले की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। इस रईस आदमी की बातें सुनकर वो सांप वहीं पर रुक गया। इस रईस आदमी के बहुत से ताल्लुकात थे, बड़े बड़े आदमियों के साथ उसका रहन सहन था, मगर वो किसी गरीब हाफिज़ कुरान लड़की की तलाश में था। आखिरकार रईस आदमी ने एक हाफिज़ कुरान लड़की को तलाश कर लिया। बेवा औरत की बेटी थी, इसके साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया और शादी की तारीख इस वक्त मुकर्रर कर दी गई जब तक बेटे की बारात इस हाफिज़ कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाए। क्योंकि अली को देखने की इजाजत किसी को नहीं थी, इसलिए इसकी माँ और नानी दोनों ही इसको दुल्हा बना कर लाएंगी। रईस आदमी के महल में बारात जाने की तैयारियां होने लगी। नजूमी की बुढ़िया बहन अपने भाई से कहने लगी कि बारात जाने का वक्त हो गया है, अब हम लोग दुल्हा कहाँ से पैदा करें। नजूमी कहने लगा कि मेरी बहन, तुमने कई साल इस महल में रहकर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर की है, मजे भी किए हैं, अब तुम इस मुसीबत को भी झेल लो, मैं तो कहीं खामोशी से फरार हो जाऊंगा। ये बात सुनकर बुढ़िया के पैरों तले से जमीन निकल गई और कहने लगी कि हाय हाय, रईस आदमी तो हमारी बोटियां करके चील और कौवों को खिला देगा। अरे जालिम, तू हमें जहन्नम में धकेल रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। नजूमी आद कहने लगा कि देखो बहन, ये भाई ने तुम्हें इतनी देर तक जन्नत में भी तो रखा हुआ था ना, अब इसका सिला मुझे ये दे रही हो। इस पर बहन कहने लगी कि याद रख, अगर तुमने हमें इस हाल में छोड़ा तो तेरी बख्शिश कभी नहीं होगी। तू हमें अभी जंगल में शेरों के पास छोड़कर जा रहा है। शहनाज भी इनकी बातें सुनकर रोने लगी। नजूमी बरकत इन दोनों को देखकर कभी हंसता तो कभी गुनगुनाता। जब दोनों माँ बेटी रोते रोते हिचकियाँ लेने लगी तो नजूमी कहने लगा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो आगे कुछ करते हैं। और वो उनको लेकर एक कमरे में गया और जाकर कहने लगा कि ये देखो, मैं 14 साल के बराबर वाला एक बुत बनवा कर लाया हूँ, इस बुत को पालकी में रख देना। बारात के वक्त जब बारात के वक्त रात में इस पालकी में इस बुत को छोड़कर तुम लोग चले जाना और सुबह के वक्त ये मशहूर कर देना कि अली को किसी ने रात में छुप कर देख लिया था, इसलिए वो बुत बन गया है। बुढ़िया सारी बात समझ चुकी थी और फिर इसने खुशी खुशी इस बुत को शादी का जोड़ा पहनाया, बनाओ सिंगार किया, फूलों का हार डाला, पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी पालकी में बैठ गई और पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज दी कि पालकी उठाकर बाहर ले जाएं। बाहर बड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही थी। इस आतिशबाजी को देखकर 2 सांप बाहर आए, उनके पीछे चल रहे थे। पीछे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर फौज और सिपाही बैठे हुए थे। बारात बहुत ही जोशो खरोश के साथ चल रही थी। चलते चलते बारात को रात में एक जगह पर रुकना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने पहले ही इंतजाम किया हुआ था। यहाँ सबने बैठकर खाना खाया और खूब मजे लिए। इस तरह जब काफी रात हो गई तो दूल्हे को पालकी में बिठाकर शीशम के दरख्त के नीचे रखवाया गया। इस बुढ़िया ने सबको ये कहकर दूर कर दिया कि अली को ताज़ा हवा की ज़रूरत है, लिहाजा पालकी के नज़दीक कोई भी ना आए। अगर किसी की नज़र अली पर पड़ गई तो सब इसके जिम्मेदार खुद होंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। बुढ़िया भी खामोशी से जाकर अपनी जगह पर सो गई। इस ज़माने में ये बात मशहूर थी कि सांप जब 100 साल का हो जाता है तो अपनी सूरतें बदल लेता है और बातें भी करता है। जब 2 सांप पुराने महल से इस बारात को पीछे आए थे, वो आकर शीशम के दरख्त के ऊपर बैठ गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा कि तुमने देखी ये बारात? उसने कहा कि हाँ मैंने देखी। वो नाग कहने लगा कि बुढ़िया सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देगी कि इस दूल्हे को किसी ने देख लिया है और ये एक बुत बन गया है।
اور تمام مکر و فریب کے پیچھے ایک نجومی کا ہاتھ ہے، اور پھر سارے کھیل سے ان کو نجات مل جائے گی اور وہ رئیس آدمی اس کو حقیقت سمجھے گا، اور پھر اس رئیس آدمی کو بہت صدمہ ہوگا، اس رئیس آدمی کی جان چلی جائے گی۔ ناگن کہنے لگی اس رئیس آدمی نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ ناگ کہنے لگا کہ یہ سب ان کی مکاری ہے، رئیس آدمی کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اس ناگن کو بھی اس رئیس آدمی پر بہت ترس آیا۔ وہ ناگن بھی کئی سالوں تک اس پرانے محل میں رہتے تھے۔ ناگن کہنے لگی ان مکار جھوٹے لوگوں کی وجہ سے اس رئیس آدمی کی جان مفت میں چلی جائے گی۔ ناگ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا اس آدمی کی جان بچ سکتی ہے اگر میں 14 سال کا لڑکا بن کر اس پالکی میں بیٹھ جاؤں۔ ناگن کہنے لگی بڑھیا جب تمہیں دیکھے گی تو علی کیسے مانے گی؟ تو ناگ کہنے لگا بڑھیا تو پہلے ہی بہت مکاری پھیلا رہی ہے، جب وہ ایک زندہ لڑکا دیکھے گی تو میں اس کو پوچھوں گا کہ علی کہاں ہے۔ وہ ناگن کہنے لگی وہ سب تک ٹھیک ہے مگر اس کے بعد کیا کرو گے؟ ناگ کہنے لگا میں دلہا بن کر اس آدمی کی بہو کو وہاں لے جاؤں گا اور پھر کسی بھی طریقے سے 1 ہفتے کے بعد تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ ناگن کو اس آدمی سے ہمدردی تو ہو گئی تھی مگر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر جانے دوں گی کہ تم کو 1 ہفتے کے اندر میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ ناگ نے ناگن سے کہا کہ ہاں میں ضرور آؤں گا۔ پھر اس نے اپنا چہرہ بدلا اور وہ ایک 14 سال کا خوبصورت لڑکا بن کر پالکی میں بیٹھ گیا اور اس بت کو جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ بڑھیا صبح ہوتے ہی اپنے حجرے سے نکل کر اپنی مکاری پھیلانے والی تھی کہ اس نے پالکی کا پردہ اٹھایا تو سامنے ایک زندہ خوبصورت لڑکا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ ناگ مسکرا کر کہنے لگا کیا تم نہیں جانتی میں بارات کا دلہا ہوں؟ تمہیں اس سے کیا غرض کہ تم بغیر دلہے کے بارات لے کر جا رہی تھی؟ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایک زندہ صحیح سلامت دلہا مل گیا۔ بڑھیا نے سوچا کہ میرا بھی اس طرح کام ہو جائے گا۔ وہ بارات لے کر اس رئیس آدمی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس رئیس آدمی نے پالکی کا پردہ اٹھایا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے بھی اپنے سے دور نہ کرے۔ اس رئیس آدمی نے اپنے بیٹے اور بہو کے آنے کی خوشی میں بہت سارا جشن منایا۔ اس نے اپنے محل کو اس قدر سجایا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس رئیس آدمی نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے بہت سارے نوکر اور کنیز مقرر کر دی۔ جب ناگ نے انسانوں کی دنیا میں یہاں اتنا عیش و آرام دیکھا تو پہلے والی زندگی کو بھول بیٹھا۔ جب بھی اس کو اپنی ناگن کا خیال آتا پھر وہ یہ سوچ کر جھٹک دیتا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دن گزار لے گی۔ دوسری طرف ناگن اپنے ناگ کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہاں جائے گی اور اپنے ناگ کو تلاش کرے گی اور اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گی، اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گی۔ پھر اس نے اپنے کنبے کے تمام ناگ اور ناگنوں کو جمع کیا اور انہیں ناگ کا حال سنا کر بولی میں اپنے ناگ کی تلاش میں جا رہی ہوں، تم سب مجھے اجازت دو۔ انسانوں کی دنیا میں جانے کے لیے وہ ناگ اپنے کنبے سے رخصت لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ ناگن ناگ کو تلاش کرتے کرتے کافی دن تک جنگل میں بھٹکتی رہی۔ پھر وہ ایک جگہ پر پہنچ گئی۔ ناگن دن بھر اس محل کے باغ میں چھپی رہی اور رات ہوتے ہی دروازے پر گئی، لیکن محل میں جانے کے تمام راستے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئی لیکن کوئی صورت ایسی نظر نہ آئی کہ وہ اندر چلی جائے۔ آخر مجبور ہو کر وہ ایک باغ میں چھپ گئی۔ صبح کے وقت ایک آدمی نے محل کا دروازہ کھولا تو وہ بے چینی سے اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے خادم دوڑنے لگے۔ اس خادم کی آواز سن کر بہت سارے خادم آ گئے اور سب نے مل کر اس ناگن کو گھیر لیا۔ ناگن کو بہت غصہ آیا اور اس نے 2 خادم کو ڈس لیا، لیکن تنہا اتنے خادم کا مقابلہ کیسے کرتی؟ خادموں نے اس کا منہ کچل دیا۔ جیسے ہی علی کمرے سے باہر نکلا تو اس نے کہا کیا تماشا لگا رکھا ہے تم سب نے صبح صبح؟ خادموں نے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کہا چھوٹے سرکار ایک سانپ باغ سے نکل کر محل میں داخل ہو گیا تھا، اس نے 2 خادموں کو بھی ڈس لیا تھا، لیکن باقی خادموں نے مل کر اس کا سانپ کا سر کچل دیا ہے۔ چھوٹے سرکار علی نے دوڑ کر مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو ناگ کی موت اور اپنی وعدہ خلافی کا خیال سے اس کے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ کافی دیر تک آنسوؤں سے روتا رہا۔ اس کی بیوی اور باپ نے اس کی اداسی کی اور رونے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے اسی غم کو لے کر ان اللہ والے بزرگ کے پاس رینگتا ہوا گیا۔ اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ان سے کہنے لگا میری بیوی ناگن مر چکی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ناگ اور ناگن میں سے ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اگر میں ان دونوں سے بدلہ لوں گا تو میری بیوی اور رئیس آدمی کو میرا علم ہو جائے گا۔ میں ایک سانپ ہوں، اس کا بیٹا نہیں۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ میں یہ بات جانتا ہوں،
और इस रईस आदमी की कोई औलाद नहीं है। तुम ज्यादा देर तक इस हाफिज कुरान लड़की से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए तुम्हें एक दिन इसको सच बताना होगा। और जो मर चुका है उसका गम ना करो, जो उस दुनिया से चला गया है वो किसी का भी सगा नहीं होता। जिस दिन तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी वो रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाएगी। तुम अपने सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दो। तुम्हारी हाफिज कुरान बीवी तुम्हारी लंबी जिंदगी के लिए बहुत सी दुआएं करती है। तुम अपनी इस जिंदगी पर ध्यान दो। नाग इस अल्लाह वाले की बातें सुनकर महल में आ गया और इधर आकर फिर इसको ख्याल आया कि अगर मेरे कुंबे वालों को मेरी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वो मेरी इस बीवी के दुश्मन बन जाएंगे और उसको मेरी नागिन का कातिल समझकर जरूर एक ना एक दिन डस लेंगे। इस ख्याल से वो बहुत बेचैन हो गया और खूब गौर फिक्र करने के बाद अपनी बीवी के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें चंद नसीहत करता हूँ, उनका हमेशा ख्याल रखना। बीवी ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं आपकी हर बात पर हमेशा अमल करूंगी। वो कहने लगा कि कांच की चूड़ियां नहीं पहनना, मटर की फलियां नहीं खाना, ग्वालन से दूध लेकर नहीं पीना, फूलों के गजरे नहीं पहनना, ये सब हमारी रीत नहीं है, इसलिए इनसे बच कर रहना। बीवी ने वादा किया कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी और उनसे बच कर रहूंगी। एक दिन इसके महल के बाहर एक चूड़ियां बेचने वाली आई। वो अपनी चूड़ियों की तारीफ करने लगी। बेगम ने चूड़ियां देखकर कहा, चूड़ियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करूं, कांच की चूड़ियां पहनना हमारी रीत नहीं है। इस बात को सुनकर वो चूड़ियां बेचने वाली हैरान रह गई और बोली कि अगर कांच की चूड़ियां पहनना आपकी रीत नहीं है तो जरा अपने शोहर से पूछना कि उसकी जात क्या है। रात को बीवी ने अपने शोहर से पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपकी जात क्या है। शोहर ने कहा कि तुम हमेशा ही पछताएगी। इसकी बीवी खामोश हो गई। कुछ दिन बाद मालन फूलों के गजरे लेकर और मटर की फलियां बेचती हुई आई और बेगम से उन चीजों की बहुत तारीफ करने लगी। उसने कहा कि ये सब बहुत अच्छी है, लेकिन फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना हमारे खानदान की रीत नहीं। ये सुनकर मालन हैरान रह गई और बोली, बेगम अपने फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना आपकी रीत नहीं तो अपने शोहर से पूछना कि उसकी जात क्या है। रात को जब हाफिज कुरान लड़की ने नाग से उसकी जात पूछी तो इसने कहा, बेगम मेरी जात मालूम ना करो वरना तुम बहुत पछताओगी। एक हफ्ते के बाद एक ग्वालन आई और अपने दूध की तारीफ करने लगी, लेकिन बेगम ने उन्हें भी मना कर दिया कि दूध पीना हमारी रीत नहीं। ग्वालन ने हैरत से बेगम की सूरत को देखा और कहने लगी, जरा अपने शोहर से पूछना कि उसकी जात क्या है। इस हाफिज कुरान लड़की को हैरत हुई। रात हुई तो हाफिज कुरान लड़की ने अपने शोहर से कहा कि आप मुझे बताइए आपकी जात क्या है। मुझे अपनी जात क्यों नहीं बताते, आज मैं पूछ कर रहूंगी। और वो कहने लगा, मुझसे मेरी जात ना पूछो वरना तुम बहुत पछताओगी और नुकसान उठाओगी। इस हाफिज कुरान लड़की ने कहा कि मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन मैं आपकी जात पूछ कर रहूंगी। वो नाग बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल में चलना, जो आबादी से बहुत दूर है। वहाँ पर मैं तुम्हें अपनी जात बता दूंगा कि मेरी जात क्या है। फिर सुबह होते ही वो लोग पुराने महल में पहुँच गए। पुराने महल में पहुंचकर शोहर ने कहा, बेगम मैं तुमसे एक बार फिर से कहता हूँ कि मुझसे मेरी जात ना पूछो, तुम बहुत पछताओगी। मगर इसकी बीवी कहने लगी, नहीं आज मैं पूछ कर रहूंगी। उसका शोहर अपनी बीवी को एक बहुत पुराने दरख्त के पास ले गया जो कि बहुत बड़ा था और उसमें बहुत छोटे छोटे सुराख बने हुए थे। उसका शोहर कपड़े उतारकर इन सुराख के पास खड़ा हो गया और एक बार फिर से कहा कि मेरे से मेरी जात ना पूछो। हाफिज कुरान लड़की कहने लगी, क्या मजाक बना रखा है आपने कि मुझसे मेरी जात मत पूछो, मुझे आपकी जात के बारे में जानना है, लिहाजा मुझे बताइए कि आपकी जात क्या है। अचानक से इसका शोहर इंसान से सांप में तब्दील हो गया और रेंगते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी बीवी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो ये बात भूल गई कि मेरा शोहर एक स्याह नाग है। इसके दिल में ये बात पैदा हो गई, जो कुछ भी हो ये मेरा शोहर है, मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसने भागकर अपने रेंगते हुए शोहर को पकड़ना चाहा, जो कि सांप बन चुका था। वो जल्दी से एक सुराख के अंदर अपना मुंह डालता हुआ अंदर चला गया और गुम हो गया। जब उसको अपना नाग कहीं दिखाई ना दिया तो इसकी बेगम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो इधर उधर भड़कने लगी तो वो दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी। वो रोती जा रही थी और उसको तलाश कर रही थी कि उसको एक घर दिखाई दिया। वो इस घर में दाखिल हो गई। वो घर बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ हल्की हल्की नीली नीली रोशनी थी। वो घर से निकलकर एक तरफ चलने लगी। चलते चलते हाफिज कुरान लड़की थक गई थी। थोड़ी देर के बाद इसका सांस फूलने लगा। बहुत सा खौफ और अजीबोगरीब बातें उसके दिल को परेशान कर रही थी। वो गिरती पड़ती मुंह उठाकर चलती जा रही थी। रह रहकर उसे ख्याल आ रहा था कि इसके शोहर की जात क्यों पूछी उसने। जब वो कह रहा था कि मेरी जात ना पूछो पछताओगी, मैंने अपने शोहर की बात क्यों नहीं मानी। आखिरकार वो एक कुएं के पास पहुंची। कुएं पर कुछ लड़कियां पानी भरने में मसरूफ थी। इनमें से हर लड़की बहुत खूबसूरत थी, मगर उनकी आंखें बहुत अजीब थी। हर लड़की की आवाज बहुत मीठी और सुरीली थी और हाथों में चूड़ियां नहीं थी और ना ही नाक कान में कोई जेवर था। वो आपस में बातें करती हाफिज कुरान लड़की को देख कर
चली जाती। आखिर इस हाफिज कुरान लड़की ने पूछा कि तुम इतना पानी कहाँ लेकर जा रही हो। वो लड़की कहने लगी कि हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने गए थे, वो बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं। इनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब नहला रहे हैं। इसकी बात सुनकर हाफिज कुरान लड़की को यकीन हो गया कि लड़की का मामू मेरा शोहर है। इसने एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी में डाल दी। उसका शोहर एक पत्थर पर लेटा हुआ था। लड़कियां उसके बदन पर खुशबू से साबुन मल रही थी और इत्र लगा रही थी और कुछ लड़के हथेलियों से उसके बदन को मालिश कर रहे थे। पानी ले जाकर लड़कियां बारी बारी उस पर पानी डाल रही थी। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उस पर डाला तो उसे हाफिज कुरान लड़की की अंगूठी पत्थर के सामने गिरी पड़ी मिली। वो इस अंगूठी को देखते ही पहचान गया कि ये अंगूठी उसकी बीवी की है। इसने अपनी भांजी से पूछा कि ये तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई। उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा, मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में ये अंगूठी कहाँ से आई। सब लड़कियों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया कि हाँ, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, वो बहुत थकी हुई लग रही थी, आंखों में आंसू टपक रहे थे। ये सुनकर नाग का दिल भर आया। वो सोचने लगा कि मेरी बेगम मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँची है, उसके दिल में क्या गुजरी होगी। फिर इसने दिल में कहा कि उसने खुद ही जिद की थी, वो मेरी ज़ात जानना चाहती थी, वो बहुत जिद्दी थी, लेकिन फिर भी वो मेरी तलाश में है। शायद हाफिज कुरान है इसलिए वफादार लड़की है और एक मैं हूँ कि इसे छोड़कर यहाँ चला आया। ऐ बेमरवत, उठ और इसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वो पत्थर से उठा और निहायत तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी बीवी बैठी हुई थी। अपनी बीवी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। उसने फौरन ही अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेगम की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें मोटे मोटे आंसुओं से भर गईं। वो टिक्का टिक्की बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब मैंने तुम्हारा दिल भी देख लिया है और समझ गया हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत है और तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो। बेगम प्यासी नजरों से उसे देखती रही। होंठों को मामूली सी हरकत दी, लेकिन जबान से कोई बात ना निकली। आखिर शोहर ने आगे बढ़कर उसके शानों पर हाथ रखा कि चलो मेरे कुंबे वालों के पास और तुम्हारा हाल सुनाओ। मुमकिन है कि तुम्हें देखकर उनको तुम पर तरस आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे दें। इस हाफिज कुरान लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। इसकी बेगम ने एक बार फिर अपनी जान के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो जानती थी कि उसका शोहर उसका साथ है। उसका शोहर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में शोहर ने अपनी सारी कहानी अपनी बीवी से बयान की और उसे बताया कि एक बरकत नजूमी ने किस तरह से एक रईस आदमी को बेवकूफ बनाया है और नकली बारात जंगल में लेकर जा रहा था। जब इसकी बारात ने जंगल में डेरे डाले तो मैं अली बनकर पालकी में बैठ गया और जब मेरी नागिन महल में गई मुझे ढूंढते हुए तो खादमों ने उसे हलाक कर डाला और उसे मार दिया। उस वक्त मेरे रोने का यही सबब था। और उसके शोहर ने कहा कि महल में जो मालन और ग्वालन आई थी उसके कुंबे की नागिन थी, तुमको उनसे बचाने की गर्ज से ही मैंने इन चीजों को खरीदने से तुम्हें मना किया था। वो खामोशी से अपने शोहर की बातें सुनती रही। वो नाग अपनी बीवी को लेकर अपने कुंबे में पहुंचा और सबको मुखातिब करते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो उसे ये मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ तब भी ये मुझे पहले की तरह चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई। अगर आप सब मुझे उसके साथ रहने की इजाजत दें तो मैं इसके साथ चला जाऊँ। इसके शोहर ने ये भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए तन्हा रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूँ तो मुझे मालूम हुआ है इंसान बहुत वफादार होते हैं। जैसा कि हमारे पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, वो भी इंसान हैं। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी हाफिज कुरान लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो। और मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊँ तो इसकी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और मुझे भी तन्हाई का एहसास नहीं होगा। शाम के कुंबे वालों ने कहा, हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से तुम्हें अपने सांप भाई को इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी बेगम को ले जाओ और अपनी जिंदगी खुशी से बसर करो। जब वो दोनों मियाँ बीवी महल में दाखिल हुए तो इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए और उनको जाकर सारा वाकया बताया। फिर अल्लाह वाले ने इन दोनों मियाँ बीवी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई रईस आदमी को बता दो। फिर जब दोनों मियाँ बीवी अपने महल पहुंचे तो सब बहुत खुश थे और वहाँ रईस आदमी अपने बेटे अली और उसकी बीवी की जुदाई से बेहद गमगीन था। अपने बेटे अली और अपनी बहू को देखकर इस रईस आदमी के जिस्म में नया खून दौड़ने लगा और उसने बिस्तर से उठकर
कर दोनों को गले से लगा लिया और इस आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे। नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच बता दी। वो रईस आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा, नजूमी उसकी बहन और अब भांजी कितना अरसा से उसे बेवकूफ बना रहे थे और दिन रात उसको ठग रहे थे। रईस आदमी का जिस्म गुस्से से कांपने लगा और इस वक्त इस नजूमी और इसकी बहन को बुलवा कर हुक्म दिया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और ये मक्कार और चालबाज जब इस मुल्क के इतने बड़े आदमी को फरेब दे सकते हैं तो ये किसी को भी लूट सकते हैं। नजूमी और इसकी बहन रईस आदमी से माफिया मांगने लगे, मगर इस आदमी ने इन दोनों की एक ना सुनी बल्कि अपने नौकरों से कहा कि इन दोनों को फौरन मेरी नजरों से ओझल कर दो। इस वक्त नौकर इन दोनों को खींच कर वहाँ से ले गए और दूसरे दिन इन दोनों मक्कार को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर इस रईस आदमी ने अपनी बेगम शहनाज को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि इसकी बीवी ने अपनी माँ और मामू का हर कदम में साथ दिया था। और सबको सजा देने के बाद वो रईस आदमी बहुत परेशान और गमगीन रहने लगा। नाग जो कि अली था समझा कि शायद इसकी वजह से इसकी ये हालत बनी है, इसलिए वो आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है, लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाऊंगा। रईस आदमी पहले तो इसकी शक्ल देखता रह गया, फिर कहने लगा, तुम इंसान हो या नाग, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें हमेशा से अपना बेटा समझा है, अब दोबारा कभी मेरे साथ तुम इस तरह की बात ना करना। मैं तुम्हारी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। रईस आदमी की बातों को सुनकर इसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। इस नाग ने अपने दिल में कहा कि मैं इस आदमी की दिलो जान से इज्जत करता हूँ और इसकी हमेशा खिदमत करता रहूंगा। फिर वो कहने लगा, अब्बा जान, आपकी कोई औलाद नहीं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, शायद अल्लाह ने इसलिए मुझे आपका बेटा बनाया है। इसके महल के अलावा बाकी सब लोग तो यही जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। ये सुनकर वो रईस आदमी अपनी आंखों में आंसू भरे सांप बेटे से कहने लगा, हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो और मेरे मरने के बाद भी मेरी जायदाद और मेरी हुकूमत तुम ही संभालोगे। ये बात सुनकर वो सांप रोने लगा और उठकर इस आदमी के हाथ चूम लिए और कहा कि अब्बा जान, आज से आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। देखा दोस्तों कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है, इंसान हो या जानवर, अगर मोहब्बत से इसे बात की जाए तो वो भी उसका जवाब मोहब्बत से देता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल सादिया स्टोरी को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुक्रिया।